میں نے چیف سپرنٹینڈنٹ ماتھر کے کمرے کا ٹرانسمیٹر یوز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے دل نے اسی منصوبے پر عمل کرنے کی اجازت دی۔ مجھے یہ مہم زیادہ آسان لگنے لگی تھی۔ خطرہ تو ہر جگہ تھا۔ اگر میں کوئی بھی ٹرانسمیٹر اٹھا کر کسی بھی جگہ لے جا کر پیغام نشر کرتا ہوں تو خطرہ وہاں بھی موجود ہوتا، مگر اپنے دفتر والے ایک تو وائرلیس سیٹ بڑے طاقتور تھے، دوسرے مجھ پر کسی کو شک نہیں پڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے ابتدائی معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ ماتھر صاحب کا دفتر ان کے جانے کے بعد بند کر کے تالا لگا دیا جاتا تھا اور اس کی چابی اسی چوکیدار کے پاس رہتی تھی جو باقی دفتروں کو بند کر کے انہیں تالے لگاتا تھا۔ دوسری چابی یا لوہے کے تار سے تالا کھول کر ماتھر صاحب کے کمرے میں جانے کی ضرورت مجھے اس لیے نہیں تھی کہ میں اس کمرے کے باتھ روم کو استعمال میں لا سکتا تھا۔ میں ایک بار یوں ہی کسی کام کے بہانے ماتھر صاحب کے کمرے میں ایک فائل لے کر چلا گیا۔ ماتھر صاحب سے باتیں کرتے ہوئے میں نے باتھ روم کی طرف دیکھ کر کہا، سر میں آپ کا باتھ روم استعمال کر سکتا ہوں؟ ماتھر صاحب نے فائل پر کچھ لکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کیپٹن مہتا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ باتھ روم کے دروازے پر باہر کی جانب کوئی چٹخنی نہیں لگی تھی بلکہ خود کار بولٹ لگا تھا۔ گول لٹو گھماؤ تو بولٹ کھل جاتا تھا، اندر سے بولٹ گھماؤ تب بھی دروازہ کھل جاتا۔ اندر کی جانب دروازے کو اندر سے چٹخنی لگا دی اور لان کی طرف کھلنے والے دروازے کا جائزہ لیا۔ اس دروازے کے اندر بھی چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ دھو کر تولیے سے پونچھے اور باتھ روم سے نکل آیا۔ ماتھر صاحب فائل پر اپنا نوٹ لکھ چکے تھے۔ کہنے لگے، اس پر میرے دستخط کی ضرورت نہیں تھی لیکن تم لے آئے ہو تو میں نے کر دیے ہیں۔ میں نے کہا، سر میں یہ فائل بھی آپ کی نظر سے گزارنا چاہتا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک بار پھر دونوں وائرلیس سیٹوں کا بھی جائزہ لے لیا تھا۔ وہ کونے میں دیوار کے ساتھ لگے تھے، کافی طاقتور ٹرانسمیٹر تھے اور ان کے آگے پینل بنا ہوا تھا۔ پاس ہی دو کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ خدا جانے یہاں سے کون کس وقت کس کو خفیہ مرموز اور دفتری پیغام نشر کرتا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو یہاں سے پیغام نشر کرتے نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے دن میں نے دفتر میں رات گئے تک بیٹھ کر کام کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اسے ایک روز پہلے ہی میں نے اپنے اسٹینو مکند لال اور سیکرٹری نمبر 2 تیواڑی سے کہہ کر اپنے منصوبے کی گراؤنڈ تیار کر لی کہ میرے باہر جانے کی وجہ سے بہت سا کام جمع ہو گیا ہے۔ سوچتا ہوں کل چھٹی کے بعد دفتر میں ہی بیٹھ کر ساری فائلیں نپٹا لوں۔ تیواڑی نے ہنس کر کہا، کیپٹن تم کنوارے ہو، رات کو دفتر میں ٹھہر سکتے ہو۔ دوسرے دن گھر میں اپنی ماتا جی سے یہ بھی کہہ دیا کہ کام زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے، دفتر میں آدھی رات لگاؤں گا۔ سجاتا کو میں نے دفتر میں آ کر فون کر دیا، اس خیال سے کہ کہیں وہ رات کو عین اس دفتر میں فون نہ کر دے جب میں اپنا آپریشن شروع کر چکا ہوں گا۔ میرے پاس ہتھیار کوئی نہیں تھا، کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ پستول وغیرہ میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، چاقو رکھنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اس خیال کو دل ہی سے نکال دیا۔ دفتر میں آ کر کوئی 1 گھنٹے کے بعد احتیاط کے طور پر میں نے بہانے سے اپنے اسٹینو چیف سپرنٹینڈنٹ اور خیراتی لال کو بھی بتا دیا کہ آج رات دفتر میں چھٹی کے بعد بیٹھ کر پینڈنگ فائلوں پر کام کرنے والا ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے بعض ایسی فائلوں کا اپنی میز پر ڈھیر لگا دیا جن میں کہیں کہیں تھوڑی بہت خانہ پوری رہتی تھی۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ میرے کمرے کے آگے چک پڑی رہتی تھی، میں کوریڈور میں آتے جاتے دیکھ سکتا تھا۔ 4 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ چیف سپرنٹینڈنٹ ماتھر بریف کیس ہاتھ میں لیے میرے کمرے کے آگے سے گزر گئے۔ 2 منٹ بعد میں نے ایک فائل ہاتھ میں لے لی اور اس کی ورق گردانی کرتا جیسے اپنے خیال میں مسٹر ماتھر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے جاتے ہی چوکیدار ان کے کمرے کو تالا لگا دیتا ہے۔ ان کے کمرے کے باہر جو چپڑاسی بیٹھتا تھا وہ بھی جا چکا تھا۔ میں چک اٹھا کر ماتھر صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ باتھ روم میں گھس گیا۔ اندر جاتے ہی عقبی لان والے دروازے کی چٹخنی کھولی، پھر باہر نکل کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ دونوں وائرلیس سیٹ دیوار کے ساتھ لگے تھے، ان پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ چوکیدار سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ کر رام رام کیا۔ ماتھر بابو تو چلے گئے ہیں صاحب جی، اس نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے کہا، ہاں بنسی، آج ذرا پہلے ہی چلے گئے ہیں، ان کے دستخط کروانے آیا تھا، دیکھا کہ اندر کوئی نہیں، خیر صبح کروا لوں گا، تم کمرے کو تالا لگا دو۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کمرے میں جا کر غسل خانے کے لان والے دروازے کی چٹخنی نہ لگا دے۔ میں احتیاط کے طور پر وہیں کھڑا رہا، یہ ظاہر کرنے کے لیے جیسے میں اپنی نگرانی میں ان کا کمرہ لاک کروانا چاہتا ہوں۔ میری حیثیت وہاں ایک ذمہ دار افسر کی تھی۔ چوکیدار بنسی میرے روب میں آ گیا، اس نے اندر جانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی اور میں نے وہیں باہر رہ کر ہی ماتھر صاحب کے کمرے میں تالا ڈلوا دیا۔ تیواڑی صاحب جاتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئے۔ کیپٹن رات کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا تو نوکر کے ہاتھ کھانا بھجوا دوں؟ میں نے کہا، ارے نہیں سر تھینک یو، ماتا جی کو کہہ آیا تھا نوکر کھانا لے آئے گا، ویسے بھی میرا خیال ہے 8-9 بجے تک ان فائلوں کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ تیواڑی نے کندھوں کو چکایا، ویسے بھارت کو تم جیسے کرمچاریوں کی ہی ضرورت ہے، چلو گڈ نائٹ۔ میں نے کہا، گڈ نائٹ سر۔ تیواڑی صاحب بھی چلے گئے۔ آہستہ آہستہ دفتر میں خاموشی طاری ہونے لگی، معمول کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ شام کے بعد رات آ گئی۔ چوکیدار کو میں نے بتا دیا کہ رات دیر تک کام کروں گا، چپڑاسی کو میں نے بھیج دیا تھا۔ 8 بجے رات میں اٹھ کر وہیں پارلیمنٹ اسٹریٹ کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے آ گیا۔
वही दाल भाजी और 2-4 हल्की फुल्की चपातियां खाईं। खाना खाने के बाद दफ्तर वापस आ गया। वहीं इलेक्ट्रिक केटल से चाय बनाई और मेज पर पांव टिकाकर आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगा और अपने प्लान की जुज़ियात पर मजीद गौर व फिक्र करने लगा। मुझे रात के ठीक 10:02 पर पाकिस्तान पैगाम नशर करना था। चाय पीकर मैं दोबारा फाइलों से निमटने के लिए नकली काम में जुट गया। मेरी मेज पर कोई 20 के करीब फाइलें जमा थीं। आधी से ज्यादा मैंने उठाकर नीचे फर्श पर रख दी। उन पर कहीं कहीं अपनी तरफ से 2-1 सतरें अंग्रेजी में लिख कर नीचे उस रोज की तारीख डाल दी कि अगर बाद में कोई चेक करे तो ये बात साबित हो जाए कि मैं फाइलों पर काम करता रहा हूँ। ठीक 10 बजे मेरी मेज पर सिर्फ 4 फाइलें रह गई थी। जब मैंने 4 फाइलें ही वहाँ रहने दी थी, मैंने सिगरेट सुलगाया और कमरे से निकलकर दफ्तर के बरामदे में टहलने लगा। मैं चौकीदार को देख रहा था कि वो किस तरफ गया हुआ है। वो मुझे सामने वाली ऑफिस बिल्डिंग के बरामदे में से गुजरता नजर आया तो मैंने उसे आवाज देकर बुलाया। वो भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, बंसी मेरे सिगरेट खत्म हो गए हैं, ऐसा करो कनॉट प्लेस में विक्रम सिगरेट वाले की दुकान खुली होगी, उससे सिगरेट के 2 पैकेट ले आओ। बंसी बोला, महाराज जी सिगरेट की दुकान तो चौक वाली भी खुली है, वहां से न ले आऊं। मैंने जेब से नोटबुक निकालकर उस पर अपने सिगरेट की ब्रांड का नाम लिखते हुए कहा, अरे बंसी वहां से तो मैं भी ला सकता हूं, मगर उनके यहाँ सिगरेट पुराने रखे हुए हैं, विक्रम के पास ताजा स्टॉक आता है, ये लो पर्चा, ये दिखाकर 2 पैकेट ले आना। वो बोला, अच्छा जी। चौकीदार बंसी ने पर्चा और 50 रुपए का नोट सदरी की जेब में रख लिया और ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बड़े दरवाजे की तरफ चल दिया, जहां गेट पर गुरखा चौकीदार पहरे पर खड़ा था। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो मैंने सिगरेट फेंक कर पांव तले मसला और गमलों के ऊपर से छलांग लगाकर ऑफिस के पिछवाड़े वाले लॉन की तरफ चलने लगा, जहां सिर्फ एक बल्ब अकबी दीवार से लगा जल रहा था, जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी या फिर खुली जगह होने की वजह से बहुत मध्यम थी। माथुर साहब के बाथरूम का दरवाजा मेरे सामने था। मैंने रुक कर दाएं बाएं देखा। जब तसल्ली हो गई कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो दरवाजे को आहिस्ता से खींचा। खुदा का शुक्र है कि दरवाजा खुल गया। बस यूं ही दिल में एक वहम सा था कि शायद दरवाजा न खुलेगा। मैंने बाथरूम में आते ही दरवाजा बंद करके अंदर से चटखनी लगा दी। बाथरूम में अंधेरा था। दूसरा दरवाजे का बोल्ट खोलकर माथुर साहब के कमरे में आ गया। यहाँ भी अंधेरा था, मगर दीवार के साथ लगे हुए दोनों वायरलेस सेट नीम तारीकी में मुझे दिखाई दे रहे थे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि चौकीदार बंसी को कनॉट प्लेस विक्रम पनवाड़ी की दुकान तक पैदल आने जाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। मैं सीधा वायरलेस सेट के पास आ गया, उसके बटन को ऑन किया। उसमें बिजली की रॉ दौड़ने लगी। नॉब को घुमाया तो वो टोन देने लगा। मैंने जेब से माचिस निकाल कर उसके डायल को गौर से देखा और सुई को घुमाते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी की तलाश शुरू कर दी। 2 मिनट की कोशिश के बाद मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी मिल गई। मैंने माइक ऑन करके अपना कोड नंबर 3 बार दोहराया। दूसरी तरफ से बॉस की आवाज सुनाई दी। उसने भी अपने कोड नंबर को 3 बार दोहराया। मैंने फौरन मरमूज हिंसों की जबान में उसे पैगाम दिया कि इंडियन आर्मी खेमकरन और फजिल्का की सरहदों पर जदीद गाइडेड मिसाइल के बंकर बना रही है और पूना के सेंटर में यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम तेजी से जारी है। ये पैगाम हिंसों की सूरत में था। 2 मिनट तक खामोशी छाई रही। फिर बॉस ने भी कुछ हिंसे दोहराए। मैंने उनको वहीं खड़े खड़े डिकोड किया। बॉस ने मेरे पैगाम के जवाब में कहा, कल शाम के 7 बजे अबुल कलाम आजाद के मकबरे पर रहना, वहीं मजूब मिलेगा। बॉस ने मुझसे एटमी आबदोस की तबाही के रद्द अमल के बारे में मजीद तफसीलात तलब की। मैंने मुख्तसर लफ्जों में उसे इन तफसीलात से आगाह कर दिया। इसमें 7 मिनट लग गए। मैंने महसूस किया कि जब मैं पैगाम नशर कर रहा था तो बीच में किसी सिग्नल की बार बार टोन सुनाई दी थी। ये एक ही तरह की टोन थी और 4 सेकंड तक सुनाई देने के बाद मादूम हो गई थी। मैं मोहतात हो गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस ट्रांसमीटर का लिंक कहाँ कहाँ पर है। मैंने बॉस से कहा कि मेरा वक्त खत्म हो गया है और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। रुमाल जेब से निकाल कर ट्रांसमीटर के डायल की नॉब और माइक पर से अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह से साफ किए। बाथरूम वाले दरवाजे के बोल्ट पर से भी अपनी उंगलियों के निशान साफ किए। बाथरूम के अंदर जो चटखनी लगाई थी उसको भी रुमाल से साफ किया। दरवाजे को घुटने की मदद से आहिस्ता से खोला और जल्दी से बाहर आ गया। मेरी तेज नजरें चारों तरफ का जायजा लेने लगी। वहाँ कोई नहीं था। आखिरी बार मैं दरवाजे के किवाड़ों पर जहाँ मेरी उंगलियों के निशान लगने का एहतमाल था रुमाल फेरा और तेज तेज कदम उठाता बरामदे की तरफ चला। गमलों को फलांग रहा था कि चौकीदार बंसी की आवाज आई, महाराज सिगरेट ले आया हूँ। मैंने अपने आप को समेटते हुए कहा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। चौकीदार बंसी सिगरेट के पैकेट और बाकी पैसे देकर बोला, महाराज। वापसी पर एक रिक्शे वाले ने अपने साथ बिठा लिया था। मैंने उसे 5 रुपए इनाम दिए तो वो बहुत खुश हुआ। बोला, साहब जी आप उधर कहाँ गए थे? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे हुक्म कर दें। मैंने जल्दी से गमलों की तरफ देखते हुए कहा, बंसी मुझे बाहर ऐसी आवाज आई थी जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। मुझे इस आवाज से बड़ा डर लगता है। मैं उसे भगाने दूसरी तरफ गया था। चौकीदार बंसी बोला, अभी उसकी खबर लेता हूँ साहब जी, आप आराम से बैठकर काम करें। मैं सिगरेट का पैकेट खोलता अपने कमरे में आ गया। कमरे में कुर्सी पर गिरते ही इत्मीनान का एक तवील सांस लिया और आंखें बंद कर ली। खुदा का शुक्र अदा किया, वो मुश्किल तरीन काम बखूबी अंजाम पजीर हो गया था जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी।
बॉस को मेरा पैगाम मिल गया था और उसका पैगाम मुझ तक पहुंच गया था और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। बीच में जो सिग्नल की यकसा आवाज 3-4 बार सुनाई दी थी उसकी तरफ ध्यान जरूर गया था, लेकिन ये सोचकर मैंने उसे दिल से निकाल दिया कि भारत इतना बड़ा मुल्क है और दिल्ली राजधानी है जहाँ हर वक्त फजा में रेडियो, टीवी और हजारों तंसीबात के सिग्नल हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं। ये उनमें से किसी एक सिग्नल की आवाज होगी। मैंने जल्दी जल्दी बाकी की फाइलें खोलकर उन पर एक एक सतर लिखी, नीचे अपने दस्तखत किए, तारीख डाली और सारी फाइलों को उठाकर एक रैक में बंद करके ताला लगा दिया। फिर बाहर आकर चौकीदार बंसी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, दफ्तर को ताला लगा दो। गैराज में मेरी पुरानी एम्बेसडर इंडियन गाड़ी खड़ी थी, उसे स्टार्ट किया और अपने मोती नगर वाले मकान की तरफ रवाना हो गया। दूसरे दिन शाम के 7 बजे मुझे जामे मस्जिद के सामने वाली ग्राउंड में अबुल कलाम आजाद के मजार पर अपने एजेंट से मुलाकात करनी थी। उसने खुद मुझे शनाख्त करना था। इस मजजूब की शक्ल सूरत से वैसे मैं आशना था। मैंने शाम के 6:15 बजे गाड़ी निकाली। माता जी से कहा कि एक दोस्त के यहाँ चाय पर जा रहा हूँ, जल्द ही आऊंगा, और गाड़ी में बैठकर सीधा कनॉट प्लेस आ गया। यहीं एक रेस्टोरेंट में बैठकर ठंडा मशरूब पिया, फिर गाड़ी लेकर जामे मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मुझे ठीक 7 बजे मौलाना आजाद के मकबरे पर मौजूद होना था। मैं देख चुका था कि इस मकबरे पर हिंदू और सिख भी शाम को जाकर फूल मालाएं चढ़ाते और लोबान जलाते थे। मैं भी वहां जाकर फूल माला चढ़ा सकता था। मैंने गाड़ी जामे मस्जिद के अकब में खड़ी की, वहीं एक फूल वाले की दुकान से फूलों के 4 हार खरीदे और आहिस्ता आहिस्ता चलता आजाद के मकबरे पर आ गया। मौलाना आजाद का मकबरा जामे मस्जिद के सामने है। ये छोटा सा मकबरा है जिसके ऊपर छतरी बनी हुई है। कब्र संगमरमर की है और इर्द गिर्द पीतल का जंगला बना हुआ है। चबूतरे के पास ही बैठने की जगह भी है। मैं जूते उतार कर चबूतरे पर आ गया। मौलाना आजाद की कब्र पर फूलों की माला डाली। मैंने माथे पर राम नाम का तिलक लगा रखा था जो मैं रोज सुबह को लगाता था, इसलिए हाथ उठाकर फातिहा खानी नहीं कर सकता था। दिल ही दिल में फातिहा पढ़कर मौलाना की रूह को सवाब पहुंचाया और चबूतरे से उतरकर जूते पहनने लगा। जूते पहनते हुए मेरी आंखें चारों तरफ का अमीक नजरों से जायजा ले रही थी। अभी तक मुझे अपना एजेंट नजर नहीं आया था। कुछ फकीर जरूर इधर उधर बैठे थे मगर उनमें अपना एजेंट नहीं था। ये कभी हो नहीं सकता था। कोई गैर मामूली वाकया या हादसा न हो गया हो, वरना अपना एजेंट कभी रुक नहीं सकता था। उन लोगों को जिन जराए से इत्तलात मिलती रहती थी वो मैं यहाँ जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन उनके जराए बहुत वसी थे। उस एजेंट को रात ही को इत्तला मिल गई होगी कि उसे कोई खास पैगाम लेकर आजाद के मकबरे पर मुझे मिलना है। वो मेरी शक्ल से बखूबी आशना था। उन्हें तो हमारी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। मैं जूते पहनकर चलने लगा तो एक आदमी दोनों हाथ फैलाए मेरी तरफ बढ़ा। भगवान की लीला न्याजी है, प्रेमष्ट भक्ति में ही मिलेगा, भक्ति में ही सब कुछ है, भक्ति में ही माधु है। मैंने उसे पहचान लिया, ये वही मजजूब था। मैं जेब से 1 रुपया निकाल कर उसे देने लगा तो उसने मेरे हाथ से रुपए का नोट लेकर फाड़ कर फेंक दिया और बोला, ब्रह्म ही ब्रह्म है, भक्ति ही भक्ति है, कि रट लगाता सामने वाले दरख्तों की तरफ चल दिया। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकाल लिया और ये कहकर उसके पीछे चला, महाराज क्षमा कर दें, मैं बड़ी श्रद्धा से दे रहा हूँ, स्वीकार करें। ऐसी जबान में इसलिए बोल रहा था कि वहाँ कुछ लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। जब मैं मजजूब की तरफ चला तो लोगों की तवज्जो हट गई। वहाँ इस किस्म के तमाशे होते रहते थे। दरख्तों में अंधेरा था। मजजूब वहाँ एक दरख्त के नीचे आलती पालती मार कर बैठ गया। उसने एक बाजू हवा में बुलंद कर रखा था और हरिओम का जाप कर रहा था। जब मैं 5 रुपए का नोट पेश करके बड़े अदब से उसके सामने बैठ गया तो मजजूब ने आंखें खोल दी, अपने सफेद सफेद डेले घुमाकर दाएं बाएं देखा और उर्दू में बोला, तुम्हारी अमानत तुम्हारी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दी गई है। उसने बुलंद आवाज में एक नारा मस्ताना लगाया और मजजूबों की तरह रक्स करता जामे मस्जिद की तरफ चल दिया। मैंने उसका पैगाम सुन लिया था। हैरानी की बात है कि वो मुझे मस्जिद के पीछे गाड़ी खड़ी करते देख रहा था। मैं ग्राउंड में से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। गाड़ी अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी थी। मैं उसके शीशे बंद करना भूल गया था क्योंकि गाड़ी में कुछ भी नहीं था। मैं गाड़ी को वहां से निकालकर मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक वीरान जगह पर गाड़ी खड़ी करके डैशबोर्ड को खोलकर देखा। उसमें कोई शय सफेद रुमाल में लिपटी रखी थी। उसे खोला तो वो पहले जैसा माचिस की साइज का एक ताकतवर ट्रांसमीटर था। उसके साथ ही जर्द रंग के कागज पर हिंसों की शक्ल में एक पैगाम लिखा था। मैंने उसे खंबे की रोशनी में पढ़ा। लिखा था, शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर में एटमी हथियारों के लिए यूरेनियम की रीप्रोसेसिंग हो रही है। ये खतरनाक बात है, इसे फौरी तौर पर खत्म करो। मैंने कागज को पुर्जे पुर्जे करके बाहर फेंक दिया। ट्रांसमीटर को जेब में छुपा कर रखा और घर वापस आ गया। अब मेरा टारगेट पूना के शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर का था। ये काम इसलिए मुश्किल और दिक्कत तलब था कि हमारे महकमे में से किसी भी आदमी को सिक्योरिटी के सिलसिले में वहाँ नहीं भेजा गया था। उधर मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी ही तैनात थे, वर्दियों में भी और सफेद कपड़ों में भी। ऐसा इसलिए किया गया था कि बकौल मिस्टर टंडन हमारे महकमे पर एटमी आबदोज की हिफाजत न कर सकने का धब्बा लग गया था। अगर ऐसी बात ना होती तो मैं इस ट्रेनिंग सेंटर पर अपनी पोस्टिंग का
کا कोई ना कोई बहाना बना सकता था। इसका मतलब था कि आला सतह की मीटिंग में भी ट्रेनिंग सेंटर में एटमी हथियारों की तैयारी को सीगाए राज में रखा गया था। भारतीय हुकाम ऐसी पॉलिसी इख्तियार करने में हक बजानिब थे। खा कैसी ही टॉप सीक्रेट मीटिंग क्यों ना हो, ये लोग एटमी हथियारों का जिक्र जबान पर लाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसका इल्म भारतीय मरकजी वजारत दिफा में या रक्षा मंत्री यानी वजीर दिफा को था, और या फिर मिसेज इंदिरा गांधी और उन दो एक साइंसदानों को जो ट्रेनिंग सेंटर की एटमी तजुर्बेगाह में इन मोहलक हथियारों पर काम कर रहे थे। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि ये एटमी हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया कि हर कीमत पर भारत के इस नापाक मंसूबे को तकमील की मंजिल तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिया जाएगा। उसी रात अपने कमरे में पलंग पर लेटा मैं इस हिकमत अमली पर गौर करता रहा जो इस सिलसिले में मुझे इख्तियार करनी थी। अपने तौर पर मैं पूना के नेवल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी नहीं कर सकता था। फर्ज कर लिया कि मैं दौरे पर वहां चला भी जाता हूं तो मुझे एटमी तजुर्बागाह तक कोई भी नहीं जाने देगा। मैंने अभी तक ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं देखा था, उसके बारे में सुना जरूर था। वहाँ बहरिया के कैडेट तरबियत हासिल करते हैं। अपने छोटे ट्रांसमीटर को मैंने अपनी कोठी के पीछे लकड़ी के एक गमले में छुपा दिया। उसके गिर्द कपड़ा लपेट कर मैंने उसे सिगरेट की खाली डिब्बी में बंद किया हुआ था। मेरा टारगेट पूना का शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर था। दिन रात मेरा जहन इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि वहाँ कैसे जाऊँ। बम्बई शहर में जो हमारा एजेंट हकीम साहब के भेस में मुकीम था, उसे किसी वजह से वहाँ से ट्रांसफर करके मकबूजा कश्मीर की तरफ भेज दिया गया था। वैसे भी मुझे बगैर हिदायत किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि कहाँ कहाँ हमारे एजेंट हैं। मेरा मिशन बड़ा पेचीदा था। ये अकेले आदमी का मिशन नहीं था, मगर सूरत हाल ऐसी थी कि मुझे अकेले ही इस मिशन को तकमील तक पहुँचाना था। आखिर मैंने पूना जाने का फैसला कर लिया और पेशबंदी के तौर पर घर में बीमार पड़ गया। मैंने ये जाहिर किया कि मुझे चक्कर आते हैं और भूख बहुत कम लगती है। दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। मेरी बीमारी से मेरी बहन कृष्णा कुमारी और सुजाता और माता जी का परेशान होना कुदरती था। दफ्तर के लोग भी मेरी खबर लेने आते रहे। हफ्ता गुजर जाने पर मैं दफ्तर गया और अपने एसटी माथुर साहब से मिलकर इस ख्याल का इजहार किया कि मैं 1-2 महीने की छुट्टी लेकर कश्मीर जाना चाहता हूँ ताकि मेरी खोई हुई सेहत बहाल हो सके। मेरी छुट्टियां भी रहती थीं। मुझे बड़ी आसानी से 1 महीने की छुट्टी मिल गई। माता जी मेरे साथ जाना चाहती थी, लेकिन उनके साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे एक रोज मैंने मुख्तसर सा सामान साथ लिया और बजरिया तैयारा श्रीनगर की तरफ रवाना हो गया। सुजाता परेशान थी, बार बार मुझे खत लिखने और फोन करने की ताकीद कर रही थी। श्रीनगर पहुंचकर मैंने दरमियाने दर्जे के एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया, जहां से मेरे तबाहकुन मिशन का आगाज होने वाला था। अपना छोटा ट्रांसमीटर मैं साथ ही लेता आया था। आते ही रात के 10 बजे मैंने श्रीनगर के मुगल गार्डन में एक वीरान जगह पर जाकर अपने बॉस से राब्ता कायम किया। बॉस ने कहा कि अगर तुम श्रीनगर में आ गए हो तो फुला मोहल्ले में फुला नाम के आदमी से जाकर मिलो, उसे अपना कोड बताओ और उसका कोड पूछो। बॉस ने मुझे उसका कोड बता दिया। सुबह 7 बजे मैं श्रीनगर के उस खास महल्ले की तरफ चल दिया। ये महल्ला श्रीनगर के मज़ाफात में वाक़ था। मैं उस खास आदमी के मकान पर जा पहुंचा। पुराना और बोसीदा 1 मंजिला मकान था। लकड़ी का दरवाजा एक तरफ को टेढ़ा हो गया था। मैंने दस्तक दी। एक नौजवान कश्मीरी लड़की ने दरवाजा खोला और कश्मीरी में पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैं कश्मीरी जबान नहीं बोल सकता था, थोड़ी थोड़ी समझ जरूर लेता था। मैंने उर्दू में एजेंट का नाम लिया कि मुझे उससे मिलना है। यहाँ उस कश्मीरी नौजवान का फर्जी नाम अमजद होगा। कश्मीरी लड़की जिसने सर पर कश्मीरी औरतों की तरह रुमाल बांध रखा था, दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। थोड़ी ही देर बाद अमजद नमूदार हुआ। गठे हुए मजबूत जिस्म का कश्मीरी नौजवान था। गोरा चिट्टा, खूबसूरत, सर के स्याह बाल, घुंघरियाले, आंखों में बला की चमक। मैंने कहा, जरा बाहर आइए, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। उसने एक मुतजस्सस निगाह मुझ पर डाली और दरवाजा बंद करके मेरे साथ चल पड़ा। एक जगह दरख्तों के नीचे पत्थरों का ढेर पड़ा था। मैं वहां जाकर रुक गया। अमजद की तरफ देखा और अपना कोड लफ्ज दोहराया। अमजद ने जवाब देने के बजाय गर्दन पर हाथ फेरते हुए जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और अपने दाएं बाएं बेपरवाही से देखा। फिर उसने अपना कोड लफ्ज बोला। उसका कोड लफ्ज वही था जो मुझे बॉस ने बताया था। कश्मीर में ये बहार का मौसम था। दरख्तों पर फूल खिले हुए थे। मैंने एक दरख्त की तरफ इशारा करके कहा, क्या सेब के दरख्त हैं अमजद साहब? वो भी दरख्तों की तरफ हाथ उठाकर बोला, हाँ जी, ये सेब के दरख्त हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे थे कि अगर कोई दूर से हमें देख रहा हो तो वो समझे कि मैं सैर की गरज से आया हूँ। अमजद मेरे साथ साथ सेब के दरख्तों के नीचे चल रहा था। मैंने उसे अपना नाम आमिर ही बताया। मेरे माथे पर उस रोज भी हिंदुओं का तिलक लगा था। अमजद ने मुझसे तिलक के बारे में कोई सवाल न किया। जाहिर है उसे मालूम था कि मैं वहाँ किसी मिशन पर हूँ। ये कश्मीरी नौजवान अमजद श्रीनगर में क्या पेशा अख्तियार किए हुए था, मैं ये यहाँ नहीं बता सकता। बहरहाल उसका पेशा इस किस्म का था कि किसी को उसे मेरे साथ देखकर शक नहीं पड़ सकता था कि मैं एक अजनबी के साथ बातें कर रहा हूँ। हम दोनों कुछ देर मुगल गार्डन की रविशों पर टहलते रहे। वो मुझे मुख्तलिफ तारीखी 12 दरिया दिखाता रहा। फिर हम एक अलग थलग जगह पर जाकर घास पर लेट गए।
हम करीब करीब ही घास पर लेटे हुए थे। मैंने अबू से अपने मिशन से आगाह किया। वो उठकर बैठ गया, जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालकर एक सिगरेट मुझे दिया, एक खुद सुलगाया, एक निगाह आसपास डाली और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, ये मिशन इतना आसान नहीं है। मैं पहलू बदल कर कोहनी के बल लेट गया और उसकी तरफ देख कर बोला, अगर आसान होता तो बॉस मुझे तुम्हारे पास आने की हिदायत न करता। ये बताओ कि तुम इस मिशन के सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हो। कश्मीरी नौजवान अमजद खामोशी से सिगरेट पीते हुए और दरख्तों में बने हुए संगमरमर के चबूतरे को देख रहा था। उसी तरफ नजरें जमाए हुए बोला, तुम एक कमांडो हो। मैं कमांडो नहीं हूँ, मगर मैंने यहाँ आने वाले कई कमांडोज की रहनुमाई की है और आधा कमांडो बन गया हूँ। फिर मेरी तरफ नजरें घुमाकर बोला, हमें वहाँ कमांडो अटैक करना होगा। इसमें हमारे बचने का सिर्फ 1% इम्कान है, जबकि नेवल सेंटर की तबाही का 100% इम्कान है। मैं इस कश्मीरी नौजवान का मुंह तकने लगा। उसके चेहरे से पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए 1000 बार अपनी जान कुर्बान कर देने का आहनी अज़्म झलक रहा था। उसके इस अज़्म ने मुझे बेपनाह ताकत दी। मेरे अंदर का कमांडो बेदार हो गया। मेरे बाजू की मछलियां फड़कने लगी। मैंने कहा, शिवाजी नेवल सेंटर बहुत वसी है, क्या हम 2 कमांडोज उसको तबाह कर सकेंगे? अमजद ने गहरा कश लेते हुए कहा, अगर मंसूबा बंदी सही और जज्बा सच्चा हो तो 1 कमांडो ही काफी है। मैं अमजद के बुलंद अज़ाइम से बेहद मुतासिर हुआ। मुझे एक ऐसे ही साथी की जरूरत थी। मैंने उससे मंसूबा बंदी के बारे में इस्तफसार किया तो वो उठकर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोला, मैं दोपहर के वक्त तुम्हारे होटल में आऊंगा। मेरा पेशा ऐसा है कि मुझे तुम्हारे पास आता देखकर किसी को शुबा नहीं होगा। आओ अब चलें। दोपहर को मैं अपने होटल के कमरे में बेचैनी से अमजद का इंतजार कर रहा था। दिन का 1:30 बज रहा था कि अमजद आ गया। उसके हाथ में कुछ गाइड बुक्स थी। हमारे बॉस की तरफ से अमजद को भी खुसूसी हिदायत मिल चुकी थी। उसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गाइड बुक मेरे आगे खोल कर रख दी। इन किताबों की वर्क गर्दानी करते हुए वो बोला, हमें आज शाम की फ्लाइट से बम्बई जाना होगा। हम अलग अलग नशिस्तों पर बैठ कर जाएंगे। मैंने शाम की फ्लाइट से मुख्तलिफ नामों से 2 नशिस्तें रिजर्व करवा ली हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। बस मैं तुम्हें यही कहने आया था। फ्लाइट का टाइम 6:15 है। ये तुम्हारा टिकट है। उसने जेब से हवाई जहाज का टिकट निकाल कर मुझे दिया, पैम्फलेट नुमा किताबें उठाई और नमस्कार करके बाहर निकल गया। बड़ा बाएतमाद और तजुर्बाकार नौजवान था। फौरन ही अमजद वापस आ गया और बोला, ट्रांसमीटर मुझे दे दो। बम्बई में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ होटल वालों को यही कहना कि तुम गुलमर्ग सैरो तफरी के लिए जा रहे हो। मैंने छोटा ट्रांसमीटर उसके हवाले कर दिया और अमजद चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।